सिर्फ 3 Imagine सेकंड। a perfect family एक vacation. शांत पानी There is पर तैरती laughter, हुई there नाव are photos, को पूरी and for तरह a से moment, उलटने में और एक everything feels परफेक्ट छुट्टी के दिन exactly को as it should. एक खौफनाक This बुरे is the सपने में Narmada बदलने में River in Jabalpur, औसतन Madhya सिर्फ 3 Pradesh. सेकंड का समय Its लगता है। white marble cliffs and सिर्फ 3 calm सेकंड। waters मतलब make 3 it a सेकंड highly इतने कम popular होते हैं कि tourist इंसान को destination. चीखने तक का But मौका in नहीं an मिलता। environment like लाइफ this, जैकेट ढूंढना the तो line बहुत दूर की between a बात है। serene हम afternoon हमेशा ये and a मानकर deadly चलते हैं कि trap पानी is अगर शांत incredibly है तो हम thin. सुरक्षित हैं। The लेकिन क्या underlying horror वाकई of ऐसा the है? Jabalpur ये accident एक is बहुत ही how खतरनाक easily an मुगालता ordinary है। moment पानी कभी भी collapses into पूरी a तरह से catastrophe हानिरहित when नहीं safety होता। is ignored. और जब हम आज On के the इस day of the विषय यानी capsize, मध्य more than प्रदेश के 30 जबलपुर में people हुए boarded a उस single दर्दनाक tourist नाव boat, हादसे के a group that दस्तावेजों included और रिपोर्ट्स का tourists, विश्लेषण local करते हैं families, तो and ये बात several और young भी ज्यादा children. डरावनी हो जाती As है। the boat बिल्कुल। moved away from क्योंकि the जब हम shore, उन the 3 सेकंड passengers के felt पीछे के secure. विज्ञान To और them, the trip मनोविज्ञान seemed को देखते हैं ना, routine, तो पता controlled, चलता है and कि वो perfectly हादसा safe. असल में उन That 3 सेकंड में security नहीं हुआ vanished था, the moment बल्कि the उसकी boat पटकथा lost its बहुत center of पहले से gravity. लिखी जा रही थी। The ठीक hull है, तो began to चलिए tilt आज sharply, के इस विस्तृत taking on विश्लेषण water में इसे faster गहराई than से anyone समझते could हैं, react. क्योंकि आज The हमारा vessel मकसद flipped सिर्फ इस entirely, त्रासदी की खबर throwing को 30 दोहराना people नहीं है। into the deep हम current. अक्सर ऐसी खबरें In the पढ़ते हैं chaos that कि followed, there was ओवरलोडिंग के no कारण time नाव for a पलटी coordinated और escape. इतने लोगों की मौत Most हो गई। passengers हाँ, और rely फिर on the हम पन्ना पलट expertise देते of हैं। boat सही कहा, operators, हम पन्ना often पलट देते realizing हैं। too late लेकिन that आज their हम ये lives have समझना been चाहते balanced हैं कि against the इसके पीछे physical का limits of an मैकेनिज्म क्या है। unstable vessel. 30 से The ज्यादा लोग preliminary जिनमें कुछ investigation shifted पर्यटक और focus कुछ to a स्थानीय calculated परिवार थे, series of एक administrative नाव पर and सवार होते operational हैं और failures. पलक झपकते ही सब Investigators कुछ खत्म identified हो जाता severe है। overloading मुझे as the शुरुआत में primary ही एक cause. बात खटक रही The है। boat was जी बताइए। carrying a weight चलिए far मान लेते हैं beyond कि its यात्री certified अनजान capacity, थे, उन्हें making it नहीं पता था। dangerously unstable लेकिन in वो the नाव water. चलाने वाला तो This रोज का instability खिलाड़ी was है ना, compounded वो by तो a हर दिन complete उसी lack of नदी में safety नाव gear. उतारता है। There बिल्कुल, were वो तो no उसका रोज life का काम jackets है। तो available for अगर the नाव men, में women, क्षमता or से ज्यादा children on लोग board. थे तो उसे The तो पता disaster होना चाहिए resulted था कि नाव directly from डूब a business सकती है। model that कोई भी prioritized इंसान ticket सिर्फ sales चंद over the रुपयों के fundamental लालच में safety अपनी requirements of the जान और vessel. अपनी नाव को इतने Hours बड़े later, जोखिम में क्यों search डालेगा? and rescue ये बात teams कुछ began हजम the नहीं हो रही grim मुझे। task of navigating आपका the ये सवाल murky, बिल्कुल जायज है low और यहीं visibility से इस पूरी घटना environment की of the सबसे riverbed. गहरी परत खुलती है। What they इसे found समझने के beneath लिए the हमें एक surface मनोवैज्ञानिक remains the सिद्धांत most को देखना होगा devastating part जिसे of the नॉर्मलाइजेशन entire ऑफ डिविएंस recovery कहा जाता है। operation. नॉर्मलाइजेशन Divers ऑफ discovered a डिविएंस। mother and her young इसका मतलब child on the है river नियमों floor, को तोड़ने की still आदत का locked in a सामान्य tight हो जाना। embrace. थोड़ा और It was a आसान भाषा final, में desperate समझाएंगे। attempt बिल्कुल। at protection. मैं समझाता हूँ। A mother मान holding लीजिए her कि एक नाव child की until असली her क्षमता last 15 breath, लोगों की है। because अब एक दिन every भारी भीड़ official होती है safety और system नाव had वाला failed 18 them. लोगों को बिठा लेता है। This specific कुछ नहीं होता, image नाव forces us to सुरक्षित move वापस आ जाती है। past तो casualty नाव वाले का statistics दिमाग ये दर्ज कर and see लेता the है कि physical अच्छा reality 15 की of what जगह happens 18 में when भी कोई खतरा safety नहीं is है। treated as an अच्छा, afterthought. मतलब उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। Local एकदम सही। police and the अगली बार वो 20 NDRF बिठाता है, mobilized फिर quickly, 25 बिठाता है। launching हर बार जब inflatable वो बिना rescue boats हादसे के and लौटता beginning है a ना search तो that उसके would दिमाग last में for सुरक्षा hours. का जो एक मानक था वो While some खिसकता were जाता pulled है। from the water वो alive, लालच में नहीं the बल्कि इस operation झूठे eventually आत्मविश्वास में transitioned ओवरलोडिंग from a करता है rescue कि मैं तो to a रोज ऐसा करता हूँ, recovery. कुछ नहीं होता। On the shore, family मतलब वो एक members waited अदृश्य helplessly खतरे for के any इतने news, करीब their पहुंच चुका panic था, slowly लेकिन turning उसे into पता the ही नहीं था। realization हाँ, that their क्योंकि loved उसकी ones पिछली were not सफलताओं coming ने उसे back. अंधा कर दिया The था। trauma of a वो water भूल जाता है tragedy कि वो नाव की extends far भौतिक क्षमता beyond the को पार कर victims in चुका the है river. और अब It वो leaves a सिर्फ permanent किस्मत के void भरोसे in the तैर रहा lives है। of the ये तो survivors left बहुत ही standing on the खतरनाक bank. मानसिकता है। The और इसी final toll was नॉर्मलाइजेशन the ऑफ डिविएंस का destruction of नतीजा था entire कि उस दिन उस families. नाव पर 30 से Children ज्यादा lost their लोग सवार हो parents, गए। and parents सुरक्षा were का forced कोई to मार्जिन bury नहीं their बचा था। children. लेकिन This outcome could have been चलिए avoided. नाव वाले की बात तो Enforced समझ आ capacity गई, limits and पर उन basic 30 safety लोगों का protocols क्या? would have kept क्या these किसी families एक को intact. भी ये महसूस Life नहीं jackets हुआ are a कि नाव में non-negotiable तिल रखने necessity. की जगह They नहीं है? represent the single most बहुत effective दिलचस्प tool for सवाल है। preventing a मतलब tragedy जब हम like the किसी one in भीड़ वाली Jabalpur. जगह पे होते Safety हैं तो एक regulations अजीब are सी not बेचैनी तो suggestions, होती है ना, and compromising on किनारे them पर is a 30 direct लोग खड़े थे, invitation to किसी ने disaster. भी आवाज क्यों नहीं Before you उठाई step कि onto भाई any बहुत boat, भीड़ है, मैं demand अगली the नाव का safety gear इंतजार you are कर लूंगी। entitled to. इसके पीछे Your भी एक life बहुत depends आम on it. इंसानी फितरत काम करती है जिसे मनोविज्ञान में डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी का बंटवारा
बंटवारा कहते हैं। जिम्मेदारी का बंटवारा। देखिए, जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क होते हैं, लेकिन जब आप एक बड़ी भीड़ का हिस्सा होते हैं तो आपका दिमाग सोचता है कि अगर कुछ गलत होता तो कोई और तो बोलता। अच्छा, सब एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। बिल्कुल, इतने सारे लोग बैठ रहे हैं तो सब ठीक ही होगा। हर इंसान यही सोचकर अपनी सुरक्षा का फैसला किसी और पर छोड़ देता है। और साथ ही यहाँ ऑप्टिमिज्म बायस भी होता है। ऑप्टिमिज्म बायस, ये क्या है? ये विश्वास कि बुरी चीजें हमेशा दूसरों के साथ होती हैं, हमारे साथ नहीं। ये तो बहुत ही डरावना सच है। इसका मतलब हम सब कहीं ना कहीं इसी मानसिकता के शिकार हैं। हाँ, हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस पल की जब नाव पलटी। स्रोत बताते हैं कि पानी बिल्कुल शांत था, कोई तूफान नहीं था, कोई बड़ी लहर नहीं आई। तो एक सपाट पैंदे वाली नाव शांत पानी में अचानक कैसे पलट सकती है? हम अक्सर सुनते हैं कि नाव का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन इसका तकनीकी कारण क्या है?
इसे समझने के लिए हमें नाव की बनावट और भौतिकी के एक नियम को समझना होगा, जिसे मेटासेंट्रिक हाइट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जब नाव खाली होती है या उसमें सही मात्रा में लोग होते हैं, तो नाव का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बहुत नीचे होता है, जो उसे पानी में स्थिर रखता है। लेकिन जब आप नाव में क्षमता से 2 गुने लोग भर देते हैं, तो वो सारा वजन नाव के ऊपरी हिस्से में आ जाता है। मतलब सारा भार ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हाँ। इससे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है। नाव टॉप हैवी हो जाती है। रुकिए, मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक हाथ पर एक ट्रे बैलेंस कर रहे हो और उस ट्रे पर पानी से भरे बहुत सारे ग्लास रखे हो। हाँ, बिल्कुल। अगर सारे ग्लास बीच में है तो ट्रे स्थिर है, लेकिन अगर एक ग्लास खिसक कर किनारे पर चला जाए तो ट्रे थोड़ी सी झुकती है। एकदम सही जा रही हैं आप। और जैसे ही ट्रे झुकती है, बाकी सारे गिलास भी उसी किनारे की तरफ फिसलने लगते हैं और पलक झपकते ही पूरी ट्रे पलट जाती है। क्या नाव के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? ये एक बहुत ही सटीक और बेहतरीन तुलना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और पानी के मामले में इसे फ्री सरफेस इफेक्ट कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि उस नाव पर 30 लोग बैठे हैं। नाव पहले से ही टॉप हैवी है। हाँ। अचानक किनारे पर कोई खूबसूरत पक्षी दिखता है या कोई एक तरफ सेल्फी लेने के लिए थोड़ा सा झुकता है। 2-3 लोग एक साथ नाव के एक ही तरफ आ जाते हैं। और क्योंकि नाव में पहले से ही बहुत ज्यादा लोग हैं, वो हल्का सा वजन भी ट्रे वाले गिलासों की तरह काम करता है। बिल्कुल। नाव एक तरफ थोड़ी सी झुकती है। जो लोग खड़े हैं या ठीक से नहीं बैठे हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण अनजाने में उसी तरफ लुढ़क जाते हैं। नाव का पूरा सेंटर ऑफ बायोंसी यानी उछाल का केंद्र अचानक बदल जाता है। हे भगवान! और नाव बिना कोई मौका दिए महज 3 सेकंड के अंदर पूरी तरह से उलट जाती है। पानी की सतह पर संतुलन के नियम बहुत बेदर्दी से काम करते हैं। 3 सेकंड, बस कुछ सेकंड, और पूरा का पूरा मंजर बदल गया। लोग जो कुछ पल पहले तस्वीरें ले रहे थे, वो अचानक गहरे पानी के नीचे थे। हाँ, सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। 30 लोगों में से यकीनन कुछ लोगों को तो तैरना आता ही होगा। लाजमी है। फिर पानी में गिरते ही इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई? तैराकी जानने वाले लोग खुद को और दूसरों को बचा क्यों नहीं पाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अक्सर लोग नहीं जानते, और यही अज्ञानता जानलेवा साबित होती है। जब कोई इंसान अचानक बिना किसी मानसिक तैयारी के पानी में गिरता है, और खासकर जब उसने कपड़े पहने हों, तो उसका शरीर एक भयंकर जैविक प्रतिक्रिया से गुजरता है। इसे कोल्ड वाटर शॉक रिस्पॉन्स कहते हैं। कोल्ड वाटर शॉक? लेकिन भारत की नदियां तो बर्फ जैसी ठंडी नहीं होती। पानी का तापमान हवा के तापमान से कम होता है, और अचानक पानी में गिरने का जो शॉक होता है वो शरीर के लिए काफी होता है। जैसे ही इंसान अचानक पानी में गिरता है, शरीर का सबसे पहला और अनैच्छिक रिएक्शन होता है एक लंबी और गहरी सांस खींचना। अच्छा, मतलब वो शॉक की वजह से? हाँ, इसे गैस्प रिफ्लेक्स कहते हैं। आप सोचिए, जब इंसान पानी के नीचे है और उसका शरीर अचानक एक गहरी सांस अंदर खींचता है, तो फेफड़ों में हवा नहीं बल्कि सीधे पानी भर जाता है। उफ, मतलब तैरना जानने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। फेफड़ों में पानी जाते ही इंसान खांसने लगता है, पैनिक हो जाता है, और दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है। इस अफरा तफरी में मांसपेशियां सुन्न पड़ने लगती हैं। ये तो बहुत भयानक है। और सबसे भयानक बात यह कि जब 30 लोग एक साथ एक छोटी सी जगह पर पानी में गिरते हैं, तो जो लोग तैरना जानते भी हैं, वे कुछ नहीं कर पाते। डूबता हुआ इंसान अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, और जो भी उसके हाथ में आता है, चाहे वो कोई लकड़ी हो या कोई दूसरा इंसान, वो उसे पूरी ताकत से पकड़कर नीचे दबा देता है ताकि खुद ऊपर आ सके। अरे बाप रे! ये एक अंधी जद्दोजहद होती है। ये सुनते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, मतलब सिस्टम का फेलियर, फिजिक्स का फेलियर और फिर बायोलॉजी का फेलियर। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब ये सारी चीजें एक साथ हुईं, तो इसका जो परिणाम सामने आया वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था। स्रोत में एक दृश्य का जिक्र है जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मुझे सच में इसे पढ़ने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। आप उस माँ और बच्चे वाले दृश्य की बात कर रही है ना? हाँ, जब रेस्क्यू टीम ने नदी में गोता लगाकर तलाशी अभियान शुरू किया, तो उन्हें गहरे पानी में एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा मिला। वो दोनों पानी के भीतर एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। आप सोचिए, उस माँ ने उस अंधेरे पानी में फेफड़ों में पानी भरते वक्त भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। उसने अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी जान को बचाने की कोशिश की होगी। यह हिस्सा पढ़ते हुए यह एहसास होता है कि 30 लोगों की संख्या बस एक गणित का नंबर नहीं है।
ये एक ऐसी अपूरणीय क्षति है जो सीधे दिल पर वार करती है। उस दृश्य ने गोताखोरों तक को रुला दिया था। जो रेस्क्यू टीम हर रोज ऐसी परिस्थितियों का सामना करती है, वे भी ऐसे मंजर के आगे टूट जाते हैं। और यहीं पर हमें यह समझना होगा कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी जिसके आगे इंसान बेबस था। सही कहा, ये कोई भूकंप या तूफान नहीं था। इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, महिलाओं और बच्चों ने जान गंवाई, किसी के सिर से माँ का साया उठ गया, कुछ बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने अभी तक जिन छोटी छोटी लापरवाहियों की बात की, जैसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस, ओवरलोडिंग, उन्हें होने दिया गया। और इस पूरी घटना में सबसे बड़ा अपराधी वो है जो वहां मौजूद नहीं था। मेरा मतलब है लाइफ जैकेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां सुरक्षा के इंतजाम न के बराबर थे और यात्रियों के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी जगहों पर लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य क्यों नहीं होता, या लोग खुद क्यों नहीं मांगते। इसके पीछे व्यवस्था की कमी तो है ही, लेकिन लोगों का रवैया भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अक्सर पर्यटन स्थलों पर लोग लाइफ जैकेट इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इससे फोटो अच्छी नहीं आएगी या पहनने में असुविधा होती है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। लोग फैशन के चक्कर में सुरक्षा को भूल जाते हैं। और नाव चलाने वाले भी समय बचाने और ज्यादा ट्रिप लगाने के चक्कर में लाइफ जैकेट बांटने की झंझट से बचते हैं। लेकिन अगर उस दिन उन लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी होती तो क्या वो कोल्ड वाटर शॉक या गैस रिफ्लेक्स से बच जाते? बिल्कुल। लाइफ जैकेट का मुख्य काम सिर्फ आपको पानी के ऊपर रखना नहीं है, बल्कि ये आपको उस शॉक वाले शुरुआती समय में जिंदा रखती है। लाइफ जैकेट आपको पॉजिटिव बायंसी देती है। पॉजिटिव बायंसी मतलब अगर आप पानी में गिरते ही पैनिक कर जाते हैं या आपके फेफड़ों में थोड़ा पानी चला भी जाता है और आप बेहोश हो जाते हैं, तब भी एक अच्छी लाइफ जैकेट आपके सिर को, आपके मुंह और नाक को पानी के ऊपर रखती है। वो आपको वो कीमती समय देती है जिसमें रेस्क्यू टीम आप तक पहुंच सके। अच्छा, उस दिन अगर लाइफ जैकेट होती तो नाव पलटने के बावजूद शायद एक भी जान नहीं जाती। वे सब पानी पर तैर रहे होते। ये बहुत बड़ा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब लाइफ जैकेट आपको तैरना नहीं सिखाती, वो आपको बस वो कुछ मिनट खरीद कर देती है जो आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। समय, वो आपको समय देती है। और उस दिन जबलपुर की उस नदी में उन लोगों के पास बस उसी समय की कमी थी। जरा उस नदी के किनारे की कल्पना कीजिए जब ये सब हो रहा होगा। कुछ ही घंटे पहले उसी किनारे से लोग एक परफेक्ट छुट्टी मनाने के लिए हंसते मुस्कुराते नाव पर चढ़े थे। हाँ, और फिर अचानक वही किनारा एक मातम की जगह बन गया। किनारे पर खड़े उन परिवारों की बेबसी के बारे में सोचिए, जो बस उस पानी को खौफ से देख रहे थे। पुलिस और रेस्क्यू टीम का घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला। कुछ लोगों को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन बाकी हमेशा के लिए उस गहराई में खो गए। वे परिवार बस एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उनका अपना कोई पानी से बाहर आ जाए। ये उम्मीद और निराशा के बीच का सबसे भयानक इंतजार होता है। और यह हमें उस अहम सवाल की तरफ ले जाता है जो स्रोत में भी उठाया गया है कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? जब हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष को देखते हैं, जैसे नाव वाले का लालच, लोगों की भीड़ वाली मानसिकता, भौतिकी के नियम और सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी, तो जवाब बहुत स्पष्ट है। ये हादसा 100% टाला जा सकता था। तो फिर यहां से हमारे लिए सबक क्या है? क्योंकि सच कहूं तो हम सब कभी ना कभी किसी न किसी छुट्टी में ऐसी ही किसी नाव पर या किसी अम्यूजमेंट पार्क की राइड पर उसी भीड़ का हिस्सा होते हैं। सबक यह है कि हमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएंस की उस चीन को तोड़ना होगा। सिस्टम या नियमों का इंतजार करने के बजाय हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। यह समझना होगा कि नियम किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही। हम हमेशा ये मान लेते हैं कि हादसा किसी और के साथ होता है, अखबारों की सुर्खियों में होता है। लेकिन आज की ये विस्तृत चर्चा हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारी जिंदगी बहुत अप्रत्याशित है। पानी दिखने में जितना शांत और सुंदर लगता है, उसके भीतर उतनी ही ताकत और खतरा छुपा होता है। पानी के साथ किया गया छोटा सा भी समझौता मौत को बुलावा देना है। और इसीलिए इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं स्रोत से ही प्रेरित एक विचार को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। वो सवाल क्या है? अगली बार जब हम किसी नाव, किसी राइड या किसी भी ऐसी जगह पे जाने के लिए एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बनेंगे, तो क्या हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का शिकार होकर चुपचाप बैठ जाएंगे? क्या हम भी ये मान लेंगे कि इतने लोग बैठ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा?
या फिर हम वो इंसान बनेंगे जो उस भीड़ के बहाव के खिलाफ जाकर रुकने की हिम्मत करेगा? क्या हम वो इंसान बनेंगे जो उस ऑपरेटर से नजरें मिलाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट की सख्त मांग करेगा? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो बहुत चुभता है, क्योंकि इसका जवाब हमें किसी और को नहीं, खुद को